First of all, thank you so much for this informative session. Um, मेरा question ये है कि as Australians, how far are we with smart grids and hybrid power plants? Good question. As I mentioned, and I had a video to show, which I couldn't. So what I'll do that I'll put on the group, on the WhatsApp group, I'll put the links. So there's a video that you will see. There are two videos about the future of the type of grid and smart grid that you're talking about. One of them is from the US. I think it is Duke Energy in New York. So it's a very good informative video, 8 or 9 minutes. And the other one is the AGL advertisement for virtual power plant, and that's a smart grid that I was talking about. So the grid will learn through the artificial intelligence your usage pattern and your generating pattern, and then it will train the grid to manage your electricity. So it will keep your power and your battery charged all the time, and the preference will be your home. And once you have additional power or excess power, then that will be given to the grid and to the other consumers. But being a smart grid, what it will do is that it can predict, it can forecast the usage of every consumer, and then the generation from every customer and consumer, whether they are industrial or whether they are domestic. And then in that way, it can manage with least interruption, least fluctuation, and then have a grid which is more sustainable. That moment, as I mentioned in one of the examples, that said that the that UK example, where during a TV drama, people can you hear me? I've got some interruptions. Yes, I can hear you. Thank you. All right. So because of those kind of patterns that every grid develops, it can become patchy and unsustainable. So that smart grid, which every modern country is working towards, is going to resolve that problem to some extent. So do we have something going on similar in Australia? Yes, and that's why I'm saying that AGL already is. There is an advertisement already going on the TV, on the national TV, that you can switch on to this smart grid if you have the solar generation panel on your roof and if you have a battery. They are the only two things that is required, and then you can connect to the smart grid. Thank you for my question. Assalamu alaikum, Tanveer sir. First of all, I'd like to thank you and Jalani sir for organizing these type of events. It's quite helpful. I'd like to introduce myself. I am Anas, and I'm a recent graduate from Deakin University in Masters of Engineering, Electrical Engineering. And I've done my specialization in renewable energy systems. And the final year project in my master's was to integrate this STATCOM in 600 kilowatt smart grid system, connect with the grid. So yeah, this presentation was quite helpful. I can relate to whatever I have studied during my postgraduate. I don't have any question, but just wanted to let you know that you are doing a great work, and wish me luck. I'm quite struggling at the moment. I've been applying to multiple jobs. My personal preference is engineering area to deal with high voltages, transmission, probably generation, transmission, distribution, high voltages. I've been trying like 6 months before graduation, applying to jobs, but not been lucky enough to get into the industry. Yeah, just wish me good luck, and that's it. Yeah, all the best to you. All the best to you and your future. And I tell you about myself. I got into this renewable AGL renewable 4 years ago. In my life, I have done, starting from Pakistan, I've done mostly the fossil fuel power generation. So I worked for
oil power generation, mostly in Pakistan, the gas power generation. Came to Australia and then worked in coal-fired power plants, in gas turbines, and all sorts of things I've done, starting from construction of large-size power station to operating the power station to doing the maintenance as a maintenance engineer, and then asset management, and then the outages, projects, all sorts of things. Never did the renewables before. So I applied for this job, and I got into this job even not having any relevant renewable engineering experience. So what I'm going to say here is that it is not necessary really to have very specific field experience. If you can demonstrate yourself in an interview that you are a fast learner, and then you can achieve things. So show your achievements during the interview, and then show that you are a fast learner. You can get the opportunity even not having very specific relevant experience. I hope so. It happened with me, and it can happen. But having said that, you still have to have some experience of some kind which can be related, which can be transformed into the newer technology. Like I had fossil fuel power generation experience of 31 years. And then my last 4 years is renewable energy. And I'm doing well. I also saw that you are not an electrical engineer. You have done bachelor's in mechanical engineering. Correct. Yeah. Correct. I'm not an electrical engineer. You don't need to be an electrical engineer to work as a power engineer. So that was quite a surprise. You can be control, you can be SCADA, you can be even chemical processing engineers are working as a power engineer. That's right. Yeah. I just hope for the best, and yeah, because that is my passion. I'm committed to it. I'm just trying to be positive, be patient. Yeah, stay positive. Correct. Yeah. Wish me luck. Being positive is very important. My wife sometimes says you're dangerously positive. So too much positive is also dangerous. Yeah. So no, that's fine. You will get it. You will get there. You will get there. There is an initial phase of struggling for everyone. But yeah, keep the hope. Keep working in right direction. Upskill yourself. Keep training yourself. Keep educating yourself, and you'll get there. Inshallah. Inshallah. Thank you. Any other question, participants, please? जी जिलानी साहब मैं बात करना चाहूँगा. Can you hear me, please? जी काशिफ बात कीजिए. जी तनवीर साहब, मैं एक्चुअली मेरे साथ यही प्रॉब्लम है. ऑल्दो कि मेरा एक्सपीरियंस है, मैं मोस्टली मेरा जो कि बैचलर सिविल में था और मैंने पाकिस्तान में डिफरेंट तरह के प्रोजेक्ट्स किए हैं, और मैं मेनली मैनेजमेंट साइड पे रहा हूँ, फॉर कॉन्ट्रैक्ट और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट साइड पे, और हाइड्रो पावर में भी काफ़ी काम किए हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स किए पाकिस्तान में, और यहाँ पे भी मैंने कुछ, मेरा ना कॉन्ट्रैक्ट यानी शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स का मेरा एक्सपीरियंस है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे जॉब एक परमानेंट या एक लॉन्ग टर्म जॉब नहीं मिल सकी यहाँ पे. मैं काफ़ी कब से हैं आप यहाँ? कब से हैं ऑस्ट्रेलिया में? तकरीबन 5 साल से. 5 साल से हैं, ठीक है. तो अब मैंने यही किया कि मैंने कहा चलो यार, अगर जॉब नहीं मिलती तो ज़रा पढ़ना शुरू करें, और मुझे ये इंटरेस्ट लगा. पहले मैंने अपने आप को रजिस्टर किया मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में, लेकिन वो ऑल्दो कि वो मेरे साथ प्रीवियस एक्सपीरियंस के साथ बड़ा मैच कर रहा था, तो लेकिन वो मैंने जब जाके देखा तो वो मुझे लगा यार आई एम नॉट लर्निंग एनीथिंग न्यू. मतलब आई ऑलरेडी न्यू, मोस्टली मुझे पता ही था उस बारे में जो वो पढ़ा रहे थे. दूसरा वो मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग और ये वो ज़्यादा फोकस उनका था. खैर एनीवे, तो मैंने फिर रिन्यूएबल का मेरे जहन में आया कि ये सस्टेनेबल एनर्जी का प्रोग्राम है RMIT में, तो मैंने वो उसमें किया. तो मैंने वो अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया. बहुत फ्लाइंग कलर्स नहीं है क्योंकि मैं फैमिली के साथ हूँ, बच्चे थोड़ी वो जॉब भी सस्टेन करने के लिए चाहिए. जी. तो बहरहाल वो कर लिया. अब ये है कि साल से मैं अप्लाई कर रहा हूँ, और मैंने CV वगैरह भी रिव्यू करवाया लोगों से. ऑल्दो कि एक्चुअली जो मुझे फील होता है कि देयर आर बिग गैप्स इन माई एक्सपीरियंस, ठीक है ना, यहाँ पर आने के बाद से. तो दैट मे बी अ हर्डल. और
सीवी को मैंने इतने सीवी बनाए हैं कि वो मतलब समटाइम्स आई लूज ट्रैक के भाई वो जैसे आपने कहा ना कि बड़ा स्पेसिफिक होना चाहिए और बड़ा वो मतलब वो करते हैं और बट आई एम नॉट बीन एबल टू गेट इनटू जॉब। तो खैर इसकी तो मल्टीपल रीजंस हो सकती हैं और विदाउट लुकिंग एट योर सीवी I think what I understood listening from you is that you have project management, mainly the project management type experience in by profession you are a civil engineer, but you haven't really done civil engineering. तो अब जो आपका जो प्रोफाइल बनता है वो ये है कि आप हार्डकोर इंजीनियरिंग जॉब की का तो आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं है, बट आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस है, डिपेंडिंग अपॉन किस टाइप के प्रोजेक्ट्स आपने किए, किस साइज और लेवल के प्रोजेक्ट किए हैं। नाउ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की क्वालिफिकेशन भी आपके पास होगी, यकीन होनी चाहिए। जी जी। आपके पास PMBOK Prince2 क्या है? नहीं मैंने मतलब PMP किया नहीं है, मगर ये है नहीं किया है, लेकिन ये है कि मेरा मोस्टली एक्सपीरियंस जो रहा है वो कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट का है। राइट। तो हाँ जी, लेकिन उसमें मैंने मतलब प्रोजेक्ट्स जो किए हैं वो दे वर रिलेटेड टू एनर्जी, लाइक उसमें हाइड्रो पावर भी किया है। इसके अलावा यहाँ पे मैंने एक मुझे चांस मिला था यहाँ पे, खैर वो हाइड्रोकार्बन का था, वो उसमें भी यहाँ पे रिफाइनरी जो एक्सन मोबिल रिफाइनरी है उनका एक छोटा सा काम था, तो वो उसके लिए मैंने कुछ सर्विसेज दी थी। मेरा ख्याल ये काशिफ साहब देखें, इसमें मैं आपको ये बताता हूँ कि मैं आपको ये मतलब एडवाइस करूंगा। आप कह रहे हैं कि आप सीवी भी अपना प्रोफेशनल बनवाया है और कई सीवीज हैं और आपको और आप इस चीज़ का भी ख्याल करते हैं कि आप PD के हिसाब से सीवी बनाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आजकल जो है किसी भी जगह, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी जो एप्लीकेशंस आती हैं उनको कोई बंदा रिव्यू नहीं करता। जी जी बिल्कुल ऐसे ही। एनी पर्सन, राइट? सो आपके पास कीवर्ड्स आपको यूज करने होते हैं, आपको बिल्कुल PD के हिसाब से आपको अपना CV बनाना होता है और आपको अपना जो कैरियर एपिसोड बनाना होता है, जो आप कवरिंग लेटर बनाते हैं, उसमें वो आप मेनली वो चीजें कवर करते हैं। अगर आप करते हैं तो आप शॉर्टलिस्ट होते हैं, वरना आप शॉर्टलिस्ट ही नहीं होते। मेन अगर एक वैकेंसी और उसके लिए 850 एप्लीकेशन आई है या 550 एप्लीकेशन आई है, तो उसमें से 8-10 से ज्यादा शॉर्टलिस्ट नहीं होनी। 8-10-15 से ज्यादा, 15 भी बहुत है, 8-10 से ज्यादा कोई बंदा, किसी के पास टाइम नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में कि वो सीरीज को रिव्यू करेगा। फिर वो बिजनेस पार्टनर होते हैं जिनको PNC बिजनेस पार्टनर, जो पहले HR कहलाते थे, HR अब HR नहीं होते, PNC बिजनेस पार्टनर्स होते हैं। वो आपके जो असाइन होते हैं बिजनेस पार्टनर आपके डिपार्टमेंट को, वो रिव्यू करते हैं और वो 10-12 एप्लीकेशन में से शॉर्टलिस्ट करके 3 या 4 आपको पकड़ा देते हैं फॉर इंटरव्यू। एक्चुअली जो आप हायरिंग मैनेजर है, the only chance you get out of few hundred applications के आपका 1.5 to 2% चांस होता है कि आपकी एप्लीकेशन, आपका CV पहुंच सके, जो बंदा उसको एक्चुअली हायरिंग मैनेजर है, जो वो पढ़ेगा डिटेल में पहली दफा बैठ के। क्योंकि PNC बिजनेस पार्टनर जो होता है वो टेक्निकल नहीं होता, उसको बिल्कुल भी उसको इससे मतलब नहीं होता कि आपने उसमें टेक्निकली क्या चीजें लिखी। तो बेसिकली जैसे कि मैंने कहा कि आपको CV में अपनी अचीवमेंट्स शो करनी होती है, आपकी आपका ये एक्सपीरियंस है, इतने साल का है, वो चीजें मैटर ही नहीं करती। मैटर ये करती हैं कि आपने अपने कम से कम अल्फाज में ब्रीफली, कंसाइजली अपनी अचीवमेंट को किस तरह से प्रेजेंट किया है। नॉट मोर देन a sentence long, 2 lines, maximum 2 lines, should be 1 line. तो आपकी एक चीज एक लाइन में कवर होनी चाहिए और आप किस तरह वो लिखते हैं। ये है प्रोफेशनल CV बनाने का यहाँ पे सारा मामला, क्योंकि वो जिस बंदे ने आपका इंटरव्यू लेना है उसके 1.5 to 2% चांस है कि आपका CV पहुंच पाएगा। सारा कुछ उससे पहले हो जाता है और वो सारा कुछ जो है वो होता है उस बेस पे कि आपने लिखा क्या अपने CV में, आपने क्या चीज कवर की है। तो अगर आपने एक सिविल इंजीनियरिंग का CV बनाया हुआ है एज ए सिविल इंजीनियर और आप वो अप्लाई करते हैं डिफरेंट जॉब्स में, तो उसका बहुत कम चांस है कि वो हो पाएगा। तो पहला तो मेरा ये एक्सपीरियंस है, इतने साल से रिक्रूटमेंट में की है मैंने, तो मैंने ये देखा है कि हमारे पास तो वो चीज़ पहुंच ही नहीं पाती जब बहुत सारे अच्छे और बहुत रेलेवेंट एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट मिस हो जाते हैं। और अगर मैं इतना डिलीजेंट हूँ कि मैं कहता हूं कि मुझे बाकी भी 15 जो एप्लीकेशन तुमने शॉर्टलिस्ट की थी वो भी दे दो, तब तो शायद मैं पढ़ पाऊंगा। और तब ऐसा हुआ है कि मैंने उन लोगों को पिकअप किया है जो कि PNC बिजनेस पार्टनर ने बिल्कुल उनको रिजेक्ट कर दिया था।
तो लेकिन ये है कि इसके लिए ज़रूरी है कि आप इस चीज़ पे बहुत पर्टिकुलर और बहुत जो है वो टू द पॉइंट आप बिल्कुल अपने पीडी के हिसाब से आप अपना सीवी और कवर लेटर बनाएं, तब तो चांस है आपको। तो एक तो ये वजह होती है। दूसरी वजह ये है कि आपका जो एक्सपीरियंस है, देखें अक्सर मैं आपको एक बात बताता हूँ, इसको कोई भी नेगेटिव ना ले इस बात को, बट एज अ पाकिस्तानी कौम हम में कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से कि हम उन चीज जो ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि एक कॉम्पिटेंट इंटरव्यूअर बहुत आसानी से पिक कर लेता है। आप अगर आप एक कॉम्पिटेंट इंटरव्यूअर हैं तो आप बहुत आसानी से पिक कर लेते हैं कि आपने लिखा क्या और आप कर क्या रहे हैं और आप कह क्या रहे हैं। तो आप वो लिखें, वो क्लेम करें जो आप कह सकते हैं, क्योंकि जब आजकल आपको पता है कि जो इंटरव्यू होते हैं वो क्या टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, ये बिहेवियरल इंटरव्यूज होते हैं। देयर इज नो टेक्निकल इंटरव्यू टाइप ऑफ थिंग, देयर इज नो टेक्निकल एंड इंजीनियरिंग क्वेश्चन आस्क्ड in any interview. They are behavioral interviews, and even the technical question is asked in a behavioral way, in a way, and we get a special training to conduct the interview. तो वो जो behavioral interview होता है उसके अंदर वो एक बंदा जो पहली दफा भी इंटरव्यू कर रहा है ना, वो उन पैटर्न क्वेश्चंस के थ्रू बहुत आसानी से जज कर लेता है कि आपने जो लिखा है वो आपने है भी आप या नहीं है। तो एक और दूसरा मशवरा मैं लोगों को ये देता हूँ कि जी आप जो है वो क्लेम करें जो आपने किया है, क्योंकि इंटरव्यू में 15 मिनट के अंदर, पहले 15 से 20 मिनट के अंदर ये डिसीजन हम हर एक अच्छा इंटरव्यू 15 से 1 घंटे के इंटरव्यू में पहले 15 से 20 मिनट के अंदर पहले 3 या 4 क्वेश्चंस के अंदर हम ये अपने पेपर पे लिख लेते हैं कि इस बंदे को हमने आगे ले जाना है या नहीं ले जाना। तो ये बहुत इजी होता है। तो ये आजकल इतना साइंटिफिक है ये इंटरव्यूइंग प्रोसेस, बिहेवियरल इंटरव्यू के कोई मिस्टेक बड़ी मुश्किल से होती है इसमें। तो ये 2-3 चीजें। तीसरी चौथी एक और चीज है जो मैं अक्सर अपने बच्चों से, यंग इंजीनियर्स को कहता हूँ, और वो पाकिस्तान से आने से पहले मैं कहना शुरू कर देता हूँ, और मैंने अपने भतीजों भांजों को भी कहा है जो ऑस्ट्रेलिया आने के ख्वाहिशमंद हैं, और इवन 1-2 हैं भी यहाँ पे आ चुके हैं एंड दे आर स्टिल डूइंग मास्टर्स। देखें जी, पाकिस्तान में हमारे पेरेंट्स का भी प्रेशर होता है और हमारा भी एक होता है कि जी हमने ग्रेजुएशन कर ली, बट दैट्स नॉट मास्टर। आप मास्टर करने के बाद समझा जाता है कि आप कुछ हैं, आप इंजीनियर हैं, वरना तो आपने ग्रेजुएशन की है, खाली आपने सिर्फ ग्रेजुएशन की हुई है तो यार बस यू आर जस्ट एन इंजीनियर, और जॉब मिलने के चांसेस कम है, और फिर बहुत से लोग MBA करते हैं और ये सारा कुछ करते हैं। तो इस चक्कर में होता है कि 22-23 साल की उम्र में आपने ग्रेजुएशन किया, फिर आपने एक मास्टर शुरू कर लिया, चाहे पाकिस्तान में चाहे पाकिस्तान से बाहर, और फिर अक्सर लोग एक मास्टर पाकिस्तान से करके और बाहर आने के लिए एक दूसरा मास्टर भी करते हैं, तो डबल मास्टर हो जाता है, या फिर साथ में MBA भी कर लेते हैं। तो जब वो 27-28 साल की उम्र में जब वो फारिग होके और अब जब जॉब ढूंढ रहे होते हैं, जैसे कि हम में से बहुत से लोग हैं, तो जब वो इंटरव्यू में वो पहला सवाल पूछते हैं कि आपका एक्सपीरियंस क्या, वो तो जब आप एक ओजी इंटरव्यूअर को बताते हैं कि जी मेरी अभी 27 साल उम्र है, मैंने कोई प्रॉपर जॉब नहीं की हुई है, कोई फुल टाइम जॉब नहीं की है, तो दे कांट कॉम्प्रिहेंड, क्योंकि यहाँ तो बच्चे 16 साल की उम्र से जॉब शुरू कर देते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, अपने छोटे भाइयों को और अपने दूसरे बच्चों को जो आने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया, उनको ये बताएं कि भाई अगर आपने इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन किया और आप इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं तो डू नॉट गो फॉर अ मास्टर डिग्री स्ट्रेट। बिल्कुल, मैं भी ये एडवाइस करता हूं। 2 साल मिनिमम 2 साल की जॉब करें, 2 साल जॉब करें, कोशिश करें मिल जाए जॉब, नहीं मिलती ठोकरें खाएं, 2 साल 3 साल जॉब कर लें, 2 साल एक प्रॉपर जॉब, फुल टाइम इंजीनियरिंग जॉब जिसको आप कह सकें कि दिस इज माय इंजीनियरिंग एक्सपीरियंस। उसके बाद मास्टर करने की सोचें, क्योंकि अगर आप ये नहीं करते तो आप अपने आप को जॉब मार्केट में इनकॉम्पिटेंट कर देते हैं। मास्टर डिग्री की जरूरत नहीं होती है किसी, आपको पता है ऑस्ट्रेलिया में हर आदमी एंट्री लेवल से एंटर करता है। जी बिल्कुल, बिलीव मी, एंट्री लेवल से एंटर करता है। मैं आपको बताऊं, मैं अपना एक्सपीरियंस कि मेरी जो लास्ट जॉब थी, जो मैंने 10 साल की हेजलवुड पावर स्टेशन, उसमें से लास्ट 5 ईयर I was working as engineering manager for both station in mine. You can check my LinkedIn profile. So I was the engineering manager leading the whole engineering department for station in mine. And then last 18 months, I worked as director asset management.
और जब मैंने switch किया from fossil fuel to renewable, what I got? Senior engineer renewables, 3 levels down where I was working on my last job. डायरेक्टर के नीचे You know, so job is always starts at the entry level in Australia. Your master degree doesn't help you. And that's the brutal reality. So if you have a master degree or master degrees and a management degree and a postgraduate diploma and have no experience, it's a challenge for you. I'm not saying that you're not going to get anything, but it's a challenge. जी So this is what my Kashi, advice is. हाँ जी Any other question, जी? थैंक यू जिलानी साहब, आप कुछ कहेंगे इसके ऊपर? आप भी माशाल्लाह इतने एक्सपीरियंस नहीं, आपने माशाल्लाह बिल्कुल ठीक बात कही है। मैं भी सबको यही एडवाइस करता हूँ कि आप ग्रेजुएशन करने के बाद पहले जो जॉब मिलती है वो करें और ये असेस करें कि आपका टेम्परामेंट क्या है। आप बेसिक चीज़ों को लर्न करें और फिर अगर आपको वो फील्ड आपके लिए मौजूद लगती है तो पहले देखें कि चैलेंजेस क्या हैं, आपकी नॉलेज कहाँ खत्म हो रही है और उसको एक्सेल करने के लिए डिसाइड करें आपको क्या मास्टर करना है। इसकी बजाय कि आप ब्लाइंडली मास्टर कर लें। और वो मास्टर अगर आप इंजीनियरिंग के बाद बैचलर के बाद करते हैं तो वो आप समझिए कि 4 साल की डिग्री की बजाय आपने 5 साल की डिग्री कर ली, उस मास्टर का कोई वैल्यू ऐड नहीं करेगी आपके लिए। करेक्ट। इट्स 100%। जी, एनी अदर क्वेश्चन जी? तो हम इसको वाइंड अप करते हैं सेशन को। एनी क्वेश्चन प्लीज? Yes, just one thing. If you don't mind me talking to Mr. Kashif. Kashif Sab, because basically I come from a similar background of project management, even though I'm an electrical engineer, but I have an experience of project management. Also, I have the certification of PMP. I just wanted to ask you for understanding at what point do we fail? How many interviews have you been to? And at that point you have failed. I mean, have you made it to a lot of interviews, or does it get rejected before that? At what point do you think have you failed? Well, the main challenge is to get to the interview. I'm pretty much sure that when I get to the interview, I have a good chance of convincing or winning the interview. So you mean to say that you have not been able to make it to a lot make of it to interviews? interview. Yes, this is an issue. This is the main issue we the engineers in Pakistan engineers get here. So since we are very new here, so this is a challenge every second person, or maybe everyone faces that. If like what I can say is that your CV is your face. So as I started my conversation with Mr. Kabir, is that I have worked on my CV, get it reviewed by different people, and I try to change it, try to establish the most relevant part. Excuse me. Sorry. So I myself, at my knowledge, I try to modify my CV as per the JD of every job. Okay, but obviously I try to apply the most relevant jobs of my experience. So I don't think that I have much to change in that scenario in my CV. But still there are a few keywords which I do add, but by somehow or the other is that the main challenge is to get to the interview. When you get to the interview, you can, if your CV is weak, but you can showcase that, or you have not been able to express these things in your CV, you may be able to express yourself or demonstrate that you are the person that is good for your job. But as So if you Mr. would like, I Tanveer think, said, as Mr. Tanveer said, fundamentally, it's the root cause of us not being able to make it to the interview is Yes. our resume. So I think we all need to work on that. Coming from a similar background, I think there's going to be, it's a new industry. So I think it's a sort of a cultural, professional shock for all of us to be in. So I think, and I'm sure once we make it to the interview, I'm pretty sure we'll be able to make it through that. But I think what we're failing at is the first step. Yeah. Not able to market ourselves. I think I'll second what Faik has just said. I'll just give you another positive spin of mine. I'm working for AGL Renewables. AGL is one of the largest power generating company registered on ASX, Australian Stock Exchange.
the largest, not one of the largest, the largest. And AGL renewable total generation at the moment is around 2,000 megawatts, which is not small. So the way we work is that we do not operate and maintain power plants ourselves, but we contract them out. So we have our engineering team and then the contractors. And when I say contractors, they are GE, they are Siemens, they are Vestas, the large power, the world largest company, Siemens. So between our three contractors, their engineering team, 3 or 4 engineers each, and me and my engineering team. In my engineering team, there are four engineers. So 4 and at least say 12 or 15 total engineers among ours and contractor engineers. There are 5 Pakistanis working. So we are smart. We can compete in this market, believe me. So it's a very positive spin from my side. 5 engineers out of 12 or 13, I think we are total, among ourselves and our contractors, and they are not small contractors. I'm talking about GE and Siemens, 5 Pakistanis. Sir, you are very right. I have been able to work on short-term basis with the organizations, and I've seen that the JD that is given on the job advertisement is actually a very small proportion, which is actually some engineer may be doing on his job. So as a Pakistani origin person and engineer, I really feel that Pakistani engineers are really good. What we lack is, first of all, this is not our home ground with home advantage. And number 2, we'd like to contain ourselves in a shell that we don't probably not connect outside of our community much, and don't mingle. This is my learning. Your experience may be different, but this is an issue which actually hampers our professional development in this land. So this is how it is. But still, having said that, I think one thing which is very, very important, as a profession, we will not be weighing too much on that, but that is called luck. So luck is a factor which this is my point of view. You may have a different views about that, but luck is a very, very important factor in getting your profession on the track. So the thing is, Kashif, that even if I agree with you, what can you do about your luck? No, nothing. Nothing. What is in your control and what is in your influence. If luck is definitely not under your influence, just let it be. Yeah, you're very right. This is what I'm trying to say, is that if you're trying your best, and if nothing is happening, okay, that's fine. That's fine. No, that's okay, fine. Thank you. And also being a Muslim and faith in Allah, keep praying as well. काशिफ भाई, I will try to add little bit into it. बहुत सारे फैक्टर हैं, लक है, no doubt, लेकिन it's not very big factor. It is a factor, लेकिन demand and supply is a big factor. उस demand and supply को आप लक कह सकते हैं कि जहाँ पर डिमांड थी वहाँ पर आप कर पाए अप्लाई कि नहीं कर पाए जी। लेकिन उसमें जो इम्पोर्टेंट बात जो होती है कि एक जो यहाँ की रिक्वायरमेंट है मार्केट की, उसको अंडरस्टैंड करने में कितना वक्त लगता है, क्योंकि मैं बहुत सारे सालों से बहुत सारे इंजीनियर से राब्ते में हूँ। बाज़ औक़ात आप इस मार्केट के जो हायरिंग प्रोसेस को और उनकी रिक्वायरमेंट को जल्दी समझ पाते हैं, बाज़ औक़ात आपको थोड़ा वक्त लग जाता है। तो अब उसको समझने में कैसे हेल्प हो सकती है, ये जो बेसिकली आज की डिस्कशन है, ये जो हमारा ग्रुप बना हुआ है, आप अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं तो 50-60 से ज़्यादा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं। ये बेसिकली ग्रुप इसलिए है कि वो लोग जो नए आए हैं, जिनको अंदाज़ा नहीं है मार्केट का। अच्छा, दूसरा ये है कि कैपेबिलिटी का भी इशू है। सम टाइम मैं अपने अंदर फील करता हूँ कि मेरे अंदर वो कैपेबिलिटीज टेक्निकल नहीं है जो मेरे कंपनी के बाकी लोगों में होती हैं, क्योंकि जो मेरी इनिशियल लर्निंग थी
वो शायद इतनी शार्प नहीं थी, जो मेरी इनिशियल एजुकेशन थी वो इतनी शार्प नहीं थी। अब अगर मुझे उनके साथ compete करना है तो मुझे ज़रा तेज़ भागना पड़ेगा। जो मेरे इर्द गिर्द के लोग हैं वो अगर स्लो भी भागेंगे तो वो पहले फासला कवर कर चुके हैं, और अगर मुझे उनके बराबर आना है तो मुझे तेज़ भागना पड़ेगा। बाज़ औक़ात हम में से कुछ लोगों को तेज़ भागने की प्रैक्टिस ही नहीं रही होती। तो ये जो मार्केट है ना, ये कुछ लोग यहाँ पर कंप्लेंट करते हैं कि रेसिज्म है। मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि रेसिज्म नहीं है इतना। बिजनेसमैन को वो बंदा चाहिए जो उसका काम कर दे, उसके पास ट्रेनिंग देने का टाइम नहीं है, इसके पास एक पोजीशन डिस्क्रिप्शन है, उसको वो चाहिए जो वो कर दे। अब वो क्वेश्चन ये है कि आप कैसे डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। उसमें दो चीजें हैं, एक तो सम और अदर आप में वो कैपेबिलिटी ही नहीं है क्योंकि आपका वो एक्सपीरियंस नहीं है, आपके पास तो लर्निंग नहीं है, उसका तो कोई हल नहीं। दूसरा सिचुएशन होती है कि आपके पास वो कैपेबिलिटी और लर्निंग है, लेकिन आपके पास अभी तक वो स्किल नहीं आ सकी कि आप एम्प्लॉयर को डेमोन्स्ट्रेट कर सकें कि आपको वो आता है। अब उसमें ये फोरम हेल्प करता है। आपकी जो फील्ड है उस फील्ड के, मैं अब ये दावे से कहता हूं कि हमारे कोई भी इंजीनियर आए उसकी जो फील्ड है उस फील्ड के कम से कम 10-15 इंजीनियर यहाँ पर जरूर होंगे। वो उनको तलाश करें हमारे ग्रुप में से, उनके साथ डिस्कशन करें, उस पर कप ऑफ कॉफी में मिले, उनसे बताए कि मैंने पहले कैसे काम करता था, यहाँ पर ये कैसे काम होता है, वो टर्मिनोलॉजी जो आप वहाँ यूज करते थे यहाँ कैसे यूज होती है, क्या वो जो सिस्टम वहाँ यूज होते थे वो यहाँ चलते हैं कि नहीं चलते, क्या वो सॉफ्टवेयर जो वहाँ यूज होते थे वो यहाँ है या डिफरेंट है, अगर डिफरेंट है तो उनका क्या नाम है, उनको लर्न करें। तो ये वो चीज है जिसमें आप अपने पाकिस्तानी दोस्तों या इस ग्रुप के दोस्तों की मदद से अपने उस नॉलेज को जो कि आता है एम्प्लॉयर तक जा सकते हैं। बाज़ उसके बावजूद भी आप ये देखिए कि अगर मैं या आप एक कंपनी रन करते हैं, आपको एक बंदे की जरूरत है, आपके पास 10 एप्लीकेंट आती है तो ऑफ कोर्स आप उसको प्रेफर करेंगे जिसने ऑस्ट्रेलिया में ऑलरेडी वैसा काम किया हुआ है। अगर वो नहीं मिलेगा तो आप उसको तलाश करेंगे जो बाहर से आया है और उसने वैसा काम किया हुआ है। और अगर वो नहीं मिलेगा तो फिर कहेंगे कि यार जिस बंदे का भी कोई अच्छा या वेल डेमोन्स्ट्रेटेड एक्सपीरियंस और उसकी अचीवमेंट है उसके साथ डिस्कशन किया जाए। तो अब ये डिमांड एंड सप्लाई है, इसको हम लक भी कह सकते हैं। लेकिन आप अगर अपने ऊपर एतमाद करें, अल्लाह पे ईमान रखें और स्ट्रगल को ना छोड़ें, एफर्ट को ना छोड़ें, आप ये अज्यूम करें कि आपके अंदर कोई डेफिशिएंसी है और अज्यूम करें कि भाई आप उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, उस कोशिश में जुस्तजू में लगे रहें, तो टाइम विल कम दैट यू विल कम ओवर इट। जी सर, एनी अदर क्वेश्चन? Gilani sir, very well explained. I totally agree with everything that you just said. बहुत शुक्रिया तनवीर साहब। एनी अदर क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम तनवीर साहब, आपको आवाज आ रही है? जी अमीर भाई आ रही है। जी अच्छा तनवीर साहब, मेरा सवाल ये है कि if I want to work as in the field of solar power, do I need to have any sort of certification or licensing to work in that field? When you say solar power, you talking about the domestic solar PV rooftops, or you talking utility grid scale power? Let's talk about like a wider any field, like in utility scale as well, or whether it be a big plant as well. देखें, अगर आप सोलर की बात कर रहे हैं तो देखें सोलर पावर में बहुत ज़्यादा इंजीनियरिंग इन्वॉल्व है ही नहीं। सोलर पावर प्लांट में कोई ऑपरेशन नहीं होती, दे आर ऑपरेटेड बाय देमसेल्फ, दे आर ऑपरेटेड ऑटोमेटिकली फ्रॉम द डिस्टेंस। कई ऐसे प्लांट हैं ऑस्ट्रेलिया में जिनको के वो जर्मनी में बैठ के ऑपरेट कर रहे हैं। हमारे ऐसे प्लांट हैं जिनकी के टोटल इंजीनियरिंग और कंट्रोल जो है वो इंडिया में, उनकी मॉनिटरिंग भी जो है ऑनलाइन मॉनिटरिंग वो सारी इंडिया में, ठीक है ना, वो ग्लोबली मॉनिटर हो रहे हैं इंडिया से। तो पर्टिकुलरली अगर आप सोलर की बात करें, अगर आप रिन्यूएबल की बात करें तो वो अलग बात है, लेकिन फिर भी अच्छा एक चीज मैं और आपको बता दूं, जहां तक हमने ये सारी चीजें डिस्कस की जिसमें बहुत सारे हमने फैक्टर्स देखे कि जॉब क्यों नहीं मिल रही है, एक चीज आपको और बता दूं, आपको पर्सपेक्टिव में डालने के लिए कि आपको अंदाजा हो कि हुआ क्या है मार्केट में, पावर जनरेशन में हुआ क्या है। मैं जिस पावर प्लांट पे काम करता था वो कोल फायर्ड पावर प्लांट था, ठीक है, वो बंद हो गया, हेजलवुड पावर स्टेशन। तो 1600 मेगावाट का पावर प्लांट था और उसके साथ कोल माइन भी थी, और टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज थे 850, आउट ऑफ विच 300 कॉन्ट्रैक्टर एंड 550 ऑन रोल एम्प्लॉइज ऑफ आवर कंपनी, राइट।
800 850 एम्प्लॉइज 1600 मेगावाट। नाउ अब मैंने स्विच में, और अब फॉर एग्जांपल मेरा पोर्टफोलियो में अगर मैं 800 मेगावाट जनरेशन देखूं, जिसमें के 2-3 विंड फार्म है और 2 सोलर प्लांट हैं 150 मेगावाट के, मिला के 800 मेगावाट है, और मैं टोटल वर्कफोर्स काउंट करूं अपनी और कॉन्ट्रैक्टर की सबकी मिला के, तो 100 से ऊपर नहीं जाएगी। 100 तो बड़ी बात है, 50-60 से ऊपर नहीं जाएगी। तो आप ये देखें कि ऑन वन हैंड जो टेक्नोलॉजी आ रही है, क्या कोई भी टेक्नोलॉजी हो, आप कोल्स देख लें, पहले वहां पे कोल्स में जो है वो हर एक उसके ऊपर जो है वो क्या कहते हैं, उसके जो कैश काउंटर होता है, फ्रंट काउंटर, उस पर एक बच्चा या एक बच्ची कोई काम कर रहा होता था। अब आप जाके देखें कोल्स में सारे वो ऑटोमेटिक लग रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, और जितने रह गए वो भी खत्म हो जाएंगे। तो जो टेक्नोलॉजी के इंप्रूवमेंट के साथ साथ जो एक नेचर ऑफ जॉब चेंज हो रही है, मैं ये हरगिज नहीं कहूंगा कि जॉब कट हो गई है, मैं ये नहीं कहूंगा कि 800 मेगावाट की जनरेशन के लिए पहले 1600 मेगावाट की जनरेशन के लिए एक बहुत ओल्ड कन्वेंशनल पावर स्टेशन पे 500-600 लोग चाहिए होते थे और अब 100 से कम लोग चाहिए, तो जॉब कट हो गई। जॉब नहीं कट हो गई, जॉब स्विच हो गई है, जॉब चेंज हो गई है। वो कैसे कि एक 500 मेगावाट की स्टीम टर्बाइन, जब आप एक अकेली टर्बाइन होती थी जो 500 मेगावाट जनरेट करती थी, उसके साथ एंसिलरी प्लांट, ऑक्सिलरी प्लांट होता था और एक बॉयलर होता था। अब आपको 800 मेगावाट का अगर विंड फार्म लगाना है, तो अब आप 800 मेगावाट का, आपने नॉर्मल साइज आजकल 3 मेगावाट का है, तो 800 मेगावाट को आप 3 से डिवाइड कर ले, तो आप सोचें कितनी विंड टर्बाइन लगेंगी एक विंड फार्म में, तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कितनी ह्यूज होगी, उसके ब्लेड्स, उसके टावर्स, उसका इक्विपमेंट, उसकी गियर बॉक्स, उतने जनरेटर। एक जनरेटर 500 मेगावाट जनरेट करता है हमारे एक बड़े थर्मल कोल फायर पावर प्लांट पे, और यहाँ 500 मेगावाट जनरेट करने के लिए आपको कम से कम 200 जनरेटर चाहिए, छोटे छोटे। तो टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी चेंज होने से नेचर ऑफ जॉब स्विच हो गई है। तो आपको एक चीज ये भी करनी है अपने आप को जॉब मार्केट में रखने के लिए, कि ये देखना है कि आप टेक्नोलॉजी कैसे इवॉल्व हो रही है, कैसे चेंज हो रही है, और हम उस टेक्नोलॉजी को कैसे फॉलो करें अपने आप को जॉब मार्केट में रखने के लिए। एज एन एग्जाम्पल, एक छोटी सी एग्जाम्पल। जी बहुत शुक्रिया। मेरा हाल है आमिर, आपका तो क्वेश्चन आंसर हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन हमारे पास 2 मिनट बाकी हैं। अगर कोई क्वेश्चन है तो हम इसको रिस्टार्ट कर लेंगे सेशन को, और अगर नहीं तो हम लास्ट में वाइंड अप करते हैं। हेलो, अच्छा तनवीर साहब, मैंने आपको बताया था, मैंने उधर निशात पावर में काम किया था और एजीएल में काम किया था एज मेंटेनेंस इंजीनियर। एजीएल में कहाँ काम किया आपने? एजीएल वो पाकिस्तान वाली अटक जैन लिमिटेड। अच्छा सॉरी। तो मैं ये उधर टर्म यूज होती है मेंटेनेंस इंजीनियर पाकिस्तान में, लेकिन यहाँ पे वही जो है टर्म वो यूज होती है एज रिलायबिलिटी। लाइक थोड़ी सी जॉब डिस्क्रिप्शन में काफी फर्क है, लेकिन वही काम रिलायबिलिटी इंजीनियर बेसिकली देख रहा होता है। तो इसके लिए मैं फील्ड में एंटर होना चाह रहा हूँ, मैं कोई कोर्स वगैरह ऐसे कर सकता हूँ? मैंने आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल देखी, आपने लिखा मास्टर्स इन रिलायबिलिटी एंड मेंटेनेंस एंड रिलायबिलिटी। मेंटेनेंस एंड रिलायबिलिटी। मेरा मास्टर बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियर में, लेकिन इसके लिए मैं कोई कोर्स कर सकता हूँ व्हिच वुड बी हेल्पफुल फॉर मी? जी देखिए, रिलायबिलिटी के बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, जो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि रिलायबिलिटी के शॉर्ट कोर्सेज और सर्टिफिकेट कोर्सेज रन करती हैं, वो आप जरूर कर सकते हैं। और ये बात मैं बहुत आपसे इत्तेफाक नहीं करूंगा कि जॉब डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मेंटेनेंस इंजीनियर की जो है वो रिलायबिलिटी इंजीनियर है। रिलायबिलिटी इंजीनियर्स भी होते हैं और मेंटेनेंस इंजीनियर्स भी होते हैं। कोई बड़ा पावर प्लांट ऐसा नहीं है जहाँ पे कि मेंटेनेंस की टीम ना हो और उसमें मेंटेनेंस के इंजीनियर्स ना हो, और मेंटेनेंस के टेक्नीशियन नॉर्मली फ्रंट लाइन टीम में होते हैं। लेकिन अगर 6-7 टेक्नीशियन है और या 10 टेक्नीशियन है और उनका एक सुपरवाइजर है, तो मेंटेनेंस इंजीनियर की भी जॉब होती है। मेंटेनेंस इंजीनियर की जॉब यहाँ भी है, ऐसा नहीं है। लेकिन रिलायबिलिटी इंजीनियर एक सेपरेट अलग, रिलायबिलिटी एंड एफिशिएंसी इंजीनियर एक और जॉब डिस्क्रिप्शन है, उसका पीडी डिफरेंट होता है। लेकिन अगर क्विकली टू आंसर योर क्वेश्चन कि यस, रिलायबिलिटी के कोर्सेज होते हैं जो आप कर सकते हैं।